Hello friend, welcome to another video tutorial, and today we will discuss about the plasma membrane. As we all know that the plasma membrane is very important for the cell because it bound the cell cytoplasm and carry on various functions like transport, maintain potential flow of nerve impulse in neuron cell, nerve impulse in neuron cell, etc. So there is a lot of function about the plasma membrane. Let us discuss about some history and then we will discuss about its structure. First of all, we know that the first time the word cell membrane was used by Nageli and Kramer in 1855। 1855 में पहली बार नगेली और क्रैमर ने ये वर्ड यूज किया था जिसको उन्होंने सेल मेम्ब्रेन कहा और सेल मेम्ब्रेन उन्होंने डिफाइन किया एनी लेयर विच सराउंड द सेल साइटोप्लाज्म, यानी कि कोई भी ऐसी लेयर जो सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करती हो उसको उन्होंने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। लेटर ऑन इन 1935 प्लोवे called it plasma lemma. Today we know it as the name of plasma membrane. So this name was given by Plow in 1935. The thought for plasma membrane was how it works and from which it is made up of is proposed by Overton. Overton, and he said that the first person who called that the plasma membrane is made up of lipids, यानी कि वो पहला बंदा था जिसने ये बात कही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से मिलकर के बनी हुई होती है। लेटर ऑन later on a model is another model is produced which is known as the biomolecule lipid leaf left model proposed by Gorter and Grendel in 1925. 1925, Gorter and Grundle proposed a model which is known as leaflet model of plasma membrane, and they demonstrate that the plasma membrane is made up of lipid bilayer. They propose that the membrane is made up of lipid bilayer, and they also propose that ki the lipid have one polar head, lipid have one polar head and a non-polar tail, like this. This is head and this is tail. So these are the first who proposed about this ki plasma membrane consists of a lipid bilayer and lipid layer have a head and a tail region. Later on in 1935,
Daniel and Davison, two scientists, discovered that the plasma membrane is trilaminar, trilaminar model, also famous with the name of sandwich model. ये दो बंदे थे, दो साइंटिस्ट, जिन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर की बनी होती है। इन्होंने कहा कि एक लेयर उसमें होगी लिपिड की, और जो लिपिड की लेयर होगी वो बाहर से कवर होगी 2 प्रोटीन की लेयर से, इसलिए 2 प्रोटीन लेयर एंड 1 लिपिड लेयर, 1 लिपिड एंड 2 प्रोटीन्स। और इन्होंने ये बात कही कि जैसे सैंडविच में जो लिपिड है, इट जस्ट बिहेव एज एन चीज। इन्होंने कहा कि ये जो लिपिड है वो चीज की तरह है, और जो प्रोटीन होती है बाहर की तरफ, इट जस्ट लाइक ए ब्रेड। तो इसलिए इस मॉडल को काफी प्रसिद्धि मिली, जिसका नाम पड़ा क्या बाद में, सैंडविच मॉडल। ओके, लेटर ऑन, और इन्होंने इस लिपिड की बाई लेयर को सिंगल लेयर माना था, इसलिए इसको ट्राई लेयर नाम दिया गया। लेटर ऑन इन 1959, 1959, a person known as J.D. Robertson proposed a model which is known as unit membrane model, which is known as unit membrane model. And they found that the plasma membrane is made up of lipid bilayer, like this, and this lipid bilayer is covered by a protein layer on both sides. It is just like sandwich, however, there is some little difference. They proposed that, I will call them, and they found that the thickness of this layer, इसकी जो मोटाई होगी वो 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम होगी। And if we talk about only protein, it may be from 25 angstrom to 20 angstrom in thickness. ठीक है? And one thing they also mention that the membrane of cell as well as cell organelles have same type of membrane। तो दोस्तों, अब से पहले जो मजे की बात या जिसको दुख कहा जा सकता है अभी तक का इस सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी में, ये जितने भी मॉडल आए, चाहे ओवरटन का, चाहे गॉर्टर का, चाहे डैनियल का, चाहे रॉबर्टसन का, none of them explain how the molecules enter or transport across this plasma membrane। कि कोई भी मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर और बाहर कैसे आता जाता है, ये बात ये मॉडल अभी तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इट इज बिगेस्ट फेलियर ऑफ दीज मॉडल्स। However, they are very much similar. Later on, in 1972, two persons, two scientists, great scientists, we call Nicholson and Singer, proposed a model
Nicholson and Singer proposed a model which is known as fluid mosaic model, which is known as fluid mosaic model. What they consist of in this model, the diagram you are seeing here, first of all, you must see this 3D diagram. We are seeing that the lipid have uh, two phases. One is hydrophobic head and one is hydrophobic tail. Okay. And these, due to this property of their hydrophobic interaction, the heads move towards the water. Love for water and hydrophobic means hate from water. So due to which these heads are towards the water, and as we know that the cell, a normal any cell contain approx 65 to 70% of water in their cytoplasm or their in outer spaces. So So these heads are towards the periphery and the tail is in between. To mask the tail from water, so it produced a bilayer structure. हेड जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे दोनों तरफ, और जो टेल है वो बीच में छिप जाएगी पानी से बचने के लिए, और इस प्रकार एक बाई लेयर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। फ्लूइड मोज़ेक इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो लिपिड है उसकी कंसंट्रेशन लगभग 55% होती है। यहाँ पर 55% जो है लिपिड है एंड अप्रॉक्स 45% यहाँ पर प्रोटीन होती है। और जो ये परसेंटेज हम लिख रहे हैं ये सेल टू सेल वेरी करती है। तो फ्लूडिटी ऑफ ए सेल एंड द नंबर ऑफ प्रोटीन्स इज डिपेंड अपॉन द फंक्शंस ऑफ ए सेल, कि सेल किस टाइप के फंक्शंस पर काम करती है, उनके आधार पर जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं वो उनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है लगातार, और सेल किस स्टेज में है उस पर डिपेंड करती है। तो अप्रॉक्स 55% पानी है और एवरेज कह रहे हैं हम, और 45% क्या है, प्रोटीन है। बाकी का रिमेनिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, बाकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे 5 से 10%। और इस प्रकार सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ओके, तो let us discuss about so first of all, if we talk about the fluid mosaic model, they said that the cell membrane is made up of lipids and proteins. Second thing, they said that the lipids is not a simple lipids. Lipids are phospholipids. Lipids are phospholipids. In neuron cells and some other cells, you found that the lipids are sphingospholipids. Sphingospholipids. Okay. Sometime you found that glycolipids. Okay. And sometime you also found sterols in the form of cholesterol. And they also said that these lipids, जैसे phospholipid mean the lipid which consist of phosphate group. स्पिंगोलिपिड जैसे माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन की, उसमें हो जाएगी यहाँ पर एक टाइप ऑफ, और ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड्स विच आर बाउंडेड विद कार्बोहाइड्रेट, एंड स्टीरोल्स आर द लिपिड्स एग्जाम्पल जैसे कोलेस्ट्रॉल. तो सम टाइप ऑफ these molecules are present in plasma membrane. If we talk about simply glycolipids, so there is cerebr cerebrosides, globosides,
gangliosides. So such type of lipids are present in plasma membrane which have the protective function in nature. And second thing is that the lipid are of two type, as already told about. The one type is their hydrophobic and hydrophilic nature, which is due to presence of head and tail constituent, and second is depend upon the saturation. Saturated fatty acids and non-saturated fatty acids. So these two type of lipids are also present. I will tell you about this. Uh, when the plasma membrane, as we know, lipids, for example, the saturated fatty acids are solid at normal room temperature. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती हैं, और नॉन सैचुरेटेड की बात करें तो ये लिक्विड होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी तो सॉलिड सैचुरेटेड फैट्स का अगर जो पूरी हमारी मेम्ब्रेन इसकी बनी हुई है सैचुरेटेड की, तो ये जम जाएगी ठंड में और ट्रांसपोर्टेशन रुक सकता है, हाल्ट हो सकता है। तो उस टाइम पर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बदल जाएंगे। ओके। और जिस टाइम पर गर्मियाँ होंगी तो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो मेल्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा और बह करके जा सकती है, तो उस टाइम पर इसमें सैचुरेशन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये खुद को बचाती हैं। इन दोनों के सैचुरेशन और नॉन सैचुरेशन के बीच में जो कॉम्बिनेशन बना करके रखते हैं फ्लूइडिटी का, वो है हमारा खासम खास फ्रेंड कोलेस्ट्रॉल। हालांकि एक नेगेटिविटी पूरी मार्केट में फैलाई गई है कि घी मत खाओ, दूध मत पियो, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल है ना। तो what about it? We can say that approx 14% cholesterol is required for maintenance of a plasma membrane for a normal fluidity. Otherwise, we feel that muscular cramps and many things, transportation blockage, many side effects of not having cholesterol in the plasma membrane, and it provides smoothness and produce max fluidity of a membrane. So it is very important. So then we will talk about the proteins. So as we saw in a diagram, there is two type of proteins in the plasma membrane. One is this type of protein. They are, as you seeing that these proteins are uh, present across the full plasma membrane. They can be pass out and pass in. If it is the inside part of plasma membrane and this is the outside pass of the plasma membrane, then we saw that these proteins in plasma membrane are present across the सेल के आर पार प्रेजेंट है, ऐसे है ना। तो इनको हम बोल देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। दे आर नोन एज द इंटीग्रल proteins. And if we saw that this protein, this this protein is only present in one leaflet, outer leaflet here, or sometime it is may also present here too, and then it is known as peripheral पेरिफेरल प्रोटीन, और हिंदी में हम कह सकते हैं परिधीय प्रोटीन, यानी कि परिधि में मौजूद हो, जो आर पार निकल रही हो, वो इंटीग्रल प्रोटीन। तो दो प्रकार की प्रोटीन मिलती हैं, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर जैसे यहाँ पर हमने लगाया हुआ है ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि एक रिसेप्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रिसेप्टर का काम करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? जैसे कि ये ब्लड वेसल जा रहा है, ये हमारी सेल है, और इस सेल में
यहाँ पर एक रिसेप्टर मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फॉर एग्जांपल दिस इज द रिसेप्टर ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन, वी कैन से फॉर इट इज इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन ब्लड में आएगी, आकर के अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, तो वो यहाँ पर इन प्रोटीन्स को, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इनको ओपन करेगी। ओपन करेगी तो ये जो प्रोटीन है इसका नाम है ग्लूट। क्या नाम है इसका? ग्लूट। इसको ओपन करेगी और ग्लूकोज जो है इस ग्लूट के रास्ते सेल के अंदर आ जाएगी। तो ये प्रोटीन जो है इस प्रकार रिसेप्टर का काम करते हैं। अभी बाहर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा गर्मी में, तो गर्मी में पसीना निकालने के लिए जो ये हमारी स्किन पर कुछ रिसेप्टर है मौजूद हैं, जो बाहर के टेम्परेचर को क्या करेंगे, पहचानेंगे, और पहचान करके हमारी सेल्स के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। हमारी म्यूकस सेल्स और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेटेड होंगी और वो क्या निकालेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार का इनका काम होता है जो रिसेप्टर होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और सेल के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करते हैं। बाहर से आने वाले सिग्नल्स को लेते हैं, उनको रिसीव करते हैं, सेल उनको इंटरप्रेट करती है और उनके अकॉर्डिंग क्या करती है, काम करती है। तो ये बाहर की तरफ होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो सेल के आर पार होती हैं और ये चैनल्स बनाती हैं, ट्रांसपोर्टर्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे चैनल्स हम एक बात करते हैं, जैसे एक चैनल है अपना एक्वापोरिन। आप लोगों ने सुना होगा कि सेल के अंदर पानी भी ऐसे ही नहीं घुस जाता है कि कहीं से भी आ जाएगा। हमारी सेल में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। तो ये एक्वापोरिन के रास्ते से ही पानी क्या होगा, जैसे मान लो दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट हेयर, तो वाटर ओनली कम अक्रॉस दिस लेयर, दिस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। सेल के अंदर भी आना और सेल के बाहर भी जाना पानी का जो है वो इसके द्वारा क्या होगा, कंट्रोल होगा। ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि द स्ट्रक्चर इज डिपेंड अपॉन plasma membrane structure composition is depend upon the what type of functions they are playing. For example, if we think about the RBCs, रेड ब्लड सेल की अगर जो हम बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होगी, तो दिस कंटेन 43% लिपिड, 49% प्रोटीन। ओके, तो depend upon what type of function it is per doing. If we talk about the liver cell, it contains 54% lipid and only 46% protein. So their functions decide ki which material is present abundantly inside the membrane. Okay, so these are the some proteins which for the work for the protein plasma membrane structure and control the functions of the plasma membranes. Second thing I must tell you about this, the proteins are not static. प्रोटीन्स जो होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एक जगह पर फिक्स नहीं होती हैं, दे ऑलवेज डिफ्यूजिंग। वो लिपिड के अंदर डिफ्यूज करती होती हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस हो कर रही होती हैं, लगातार वहाँ पर चलती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करती रहती हैं। ओके, तो दे आर नॉन स्टैटिक्स। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज दैट if we want to know a technique which is known as the freeze fracture technique, which is used to detect either proteins are movable in plasma membrane or not. So word fluid mosaic come from the that thing that the जैसे समुद्र में बर्फ, जैसे अगर जो आप अंटार्कटिका की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर पानी के ऊपर बर्फ तैर रही होती है और वो अलग नजर आती है उस तैरती हुई पानी में। तो पूरा समुद्र पानी का नजर आ रहा है लेकिन उसमें एक बर्फ का सॉलिड टुकड़ा नजर आ रहा है।
तो इसलिए इस मॉडल का नाम ऐसा रखा गया है कि जो ज़्यादा मात्रा में लिपिड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उसमें जो बर्फ के जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे कहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक हम इसके बाद डिफ्यूज़न और उसके लेकर के एक और अलग से बात करेंगे, ओस्मोसिस एंड उसके बारे में। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक आता है, लिपिड राफ्ट। अगर जो आप एमएससी या कोई टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। अदरवाइज 11 ट्वेल्थ में तो शायद इसका कुछ लफड़ा है नहीं, लिपिड राफ्ट। तो जब हम किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियल मीडिया में रखते हैं, उसको चेक करते हैं आर्टिफिशियल मीडिया में, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो सिकुड़ करके ऐसे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मतलब लेयर है, ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, उभरे हुए पर दिखाई देते हैं जो इस तरीके के। तो इन स्ट्रक्चर्स को, जिसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि वो रिसेप्टर्स जो ऊपर की तरफ मौजूद थे अभी, उनका स्ट्रक्चर जम जाता है इस तरीके का सॉलिड से स्ट्रक्चर में, जिन्हें लिपिड राफ्ट कह देते हैं। ओके। तो एक और प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, डेट इज मिसेल्स। ये मिसेल्स बनाती है। मिसेल्स आप जानते हो, मतलब कि लिपिड बॉडीज जो होती हैं उनको मिसेल्स बोलते हैं। यानी कि ये आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ आ जाएगा और हाइड्रोफिलिक हैंड बाहर की तरफ चला जाएगा, और ऐसे एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। तो समटाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेल्स, जैसे कपड़े धोने का जो प्रॉपर्टी होती है उसके जैसा रोल है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको समझ आया हो थोड़ा बहुत। एंड ये हमारी एक छोटी सी मुहिम है, आप भी इसमें भागीदार बने कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ें। हम फ्री में बिना किसी पैसे वैसे के, ऐसे ही बस सोसाइटी की थोड़ी मदद हो सके, कोई बच्चा पढ़ सके, इसलिए थोड़ा सा हमने ये शुरू किया है। तो आप इसको, वीडियोस को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें, और समझ में ना आए तो हमें बताएं, कमेंट करें। तो वी विल डू समथिंग मोर बेटर एंड बेटर। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो हम कैसे उनका निदान